Bismillahirrahmanirrahim. Salam and a very good afternoon to all present. We are gathered here to welcome Colonel Dr. Talat Shabir, Director, China-Pakistan Studies Center, Institute of Strategic Studies, Islamabad, and the author of Creating Shared Futures, Pakistan-China, A Journey of Trust and Friendship. The title was so romantic that I could not resist having a gathering of all friends here to be able to hear him and see how he has put the book together. In fact, the romanticism of the title is something I could relate to because the last time I shared my future, I ended up having 3 children. So, before I invite him to the rostrum to give us an insight into the contents of the book, I would first like to compliment him on the effort which should serve the most valuable needs of an historical archive for the country and which will also give us, the readers, an insight into the mindset of the Pakistan establishment for having taken the direction that they did choose and we so clearly endear. Post the demise of the empires, the planet seems littered with nation states, and that is indeed the political map that exists for us to reckon with. This map is not watertight or ironclad and is subject to changes and poised to proliferate. Evidently, the root cause is economic objectives, and that is perfectly understandable from an alien viewpoint. Since I, as your host, may not perhaps be able to join into the fray of the questions and answers session, as a courtesy to all of you present, I will seize of this opportunity to put 2 questions to the learned author right now so that we can benefit from his response, if possible, during the discourse. I believe you want to scribble something. Okay. My first question is on the relevance and need of a dependency relationship 7 decades down the road with any one country in denial of multilateralism. And my next question would be the disregard of our ideology in strengthening bilateral relations with any country of the world. The objective of these questions is to seek answers for the liberation of the economic paradigms in Pakistan and towards seeking economic collaborations in the naturally akin regions of the world that present relevance to our ideology, culture, and geopolitical validity. Economic and monetary independence based on ideologies has a proven track record for hyper-development despite total devastation after the 2 world wars, and it is therefore a fair objective to seek and desire. I once again welcome you, Dr. Talat Shabir, in our midst and invite you to come address us on the contents of your book and share your findings that will inshallah aid and assist our perception. But before I request you to walk up here, may I request Janjua Saab to come and tell us something about Dr. Talat Shabir so that we are a little more familiar than we are with him right now. Thank you. Since I've been asked to talk about him, so I can't talk about myself. So that's the first part. But I can only say that my name is Yasir Janjua. I'm a defense and security analyst. And I know Colonel Dr. Talat Shabir, if not wrong, since, again I've used the word if not wrong, since 1986 maybe. I started my career in the army, eventually did something else. I can proudly say and confidently say
because the demand of the job is such in the armed forces that the expectations from you are not to be what Talat Shabir has transformed, or maybe I should say, he was God gifted and born with those qualities. You're sitting here today expecting to hear from him on his new book, but many of you may not know that he's a very good poet as well. And poetry comes oozing out of him sometimes at 3 o'clock in the morning. So that is the side of him a lot of people don't know. And why I'm saying all of this is because to everyone who thinks a military man, a man who's been in the uniform, he's very rugged, very hard, very harsh, very crude. Here is the man we are talking about, who's very polite, who's very soft spoken, and very literary, which is very, very rare in an armed forces officer. And I'm very proud to be associated to him and to have known him for a very long time. And now, in his current capacity as director at Pakistan China Study Center, what he's doing, I almost on a daily basis go meet him and see what value he's adding to the Pakistan-China relations. He's doing such a great work, unseen and unheard for many, but in the background to build and strengthen the relationship with China. And you can say he's one of those key scholars and people behind the scenes, behind the curtain, who's driving the Pakistan-China relation in the current CPEC environment and scenario. And it is his work, his literary work, his scholarly work, his articles, and especially it would not be fair to mention that he is the pioneer when he joined Pakistan China Study Center at the Institute of Strategic Studies. He started a journal, a monthly journal, which is specifically aimed at promoting Pakistan-China relations. So I can say conveniently that I salute his vision, that he saw where Pakistan-China relations should be going in the next coming years. And it is because of his work and untiring effort that the Chinese government recognizes his importance. Every Chinese ambassador knows him on a first name basis, and the Chinese embassy in Islamabad, they work very closely with him because he is doing both ways. He's promoting China here in Pakistan and promoting Pakistan in China. He's recently started, or he's about to start writing in a leading Chinese English newspaper, where his articles are now going to be published there as well. So it's a very, very rare thing, especially from somebody who's been in the uniform for most part of his life. I would not take any longer, and I would not steal the show away from him, because it is his show. We are all very privileged that he has written such a book, which is very enlightening. And obviously the two questions Agha Sahab has asked are some very, very important questions that would come to any literary man's mind. So we would appreciate that he will answer those as well. But without any further ado, Dr. Talat Shabir, I'm sure, I was thinking I'm the Lone Ranger, but I think because of COVID situation, the list of his admirers is very long. Because of the COVID situation, Agha Sahab has been, though graceful and gracious, but the audience is limited. But there are more than a lot of people who want to talk about him. And I would request Majid Sahab to please come over and say some few words for him. Thank you very much. Thank you, Agha Sahab.
I met Colonel Talat Shabir along with Colonel Maqbool Afridi when we were part of the Shayan Malik is sitting here. I think Sohail आप भी किया है NDU. So we are alumni. We are called ourselves alumni of the National Security Workshop of the NDU. लेकिन तलत साहब से मुलाकात कैसे हुई? We had a program of the we call it AN in Sindh. We had all gathered at JS Bank. Imran Sheikh was the host, and we discussed a few things. There was a big conference that was to be held, and the corps commander at that time, Karachi, was to be the chief guest. And I had no idea that he is a poet, or he is a writer or whatever. दिमाग में तो वही था ना, फौजी और बंदूक. But what happened was that after the meeting he said, I have an announcement to make. This is the book I've written on poetry, Urdu mein wo bhi, and I want to present it to somebody. And he announced that I brought this book specially for Majid Aziz. जब Majid Aziz ने कभी उनसे मुलाकात नहीं की थी, I had never met him, और वो भी देखे कर्नल साहब एक मेमन को दे रहा है उर्दू की एक पोइट्री की किताब. But our friendship started from that day. हम मेमन तो कोई चीज मुफ्त में करते नहीं है ना. But what happened was then his progress, he continues to keep all of us informed, his friends, with the on WhatsApp and others. And I was invited by him to visit the institute. He took me all around. We spent a couple of hours and thela bhar ke de diya a lot of things. But I'm proud to be his friend, proud to be his elder brother, and good luck to him. And the objective of his mission is the Pakistan and China, which has to be understood by the general public. So maybe one day you should have it translated to Urdu, ताकि मेरे जैसे जिनको अंग्रेजी नहीं आती, we can also be benefit from the subject, And we have to try to understand the Pakistan-Chinese issue and try our best to promote the positivity rather than continuing to be negative about everything. China is a friend, is a known friend, and has proved many a times. And it is incumbent upon all of us, especially we in the business community also, that we make sure that we become a part of the CPAC, and we ensure that CPAC is really, I don't like to use the word game changer, but is really beneficial to both the countries. Thank you, Aga Sahab, for inviting us here. बहुत मेहरबानी. Now I'd like to invite Colonel Talat Shabir to come and introduce his book to us. Thank you. Ladies and gentlemen, first of all, एक तो मैं मेरे ख्याल में मिक्स करके बोलूँ उर्दू अंग्रेज़ी ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आगा साहब का कि उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत शाम और दोस्तों को और बहुत सारे सीनियर लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया. और मेरी असल में पाकिस्तान में लिखने वालों की ये शिकायत होती है कि उनकी कदरदान कम है. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा जी कि चूँकि कोविड सिचुएशन है लेकिन हम आपकी किताब की बातचीत अपने घर में करेंगे. तो ऑल द मोर रीज़न दैट ही गेव मी अ काइंड ऑफ फैमिली टच. तो मैं उनके लिए बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने यासर ने बात की, मजीद भाई ने बात की. मेरी आदत है कि जब भी इस्लामाबाद में ऐसी तकरीबात होती हैं तो मैं अपनी वालदा को साथ लेके जाता हूँ. मेरी बाकी किताबों की तकरीबात हुई या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जिसमें मुझे बोलना होता है या लोग बोल रहे होते हैं तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन होती है कॉमन हर तकरीब के बाद. कहते हैं जब तुम्हें अपनी तारीफ़ें करवानी होती हैं तो तुम इस तरह के फंक्शन करवाते हो. तो आपको भी ये शक गुजरेगा कि मेजर यासर अब्दुल्ला जो कल मैं स्पेशली फ़्लाइट पे यहाँ पे लेके आया to speak something good about me. Sir, I'm grateful to you, sir. जी भाई आपकी बहुत शुक्रिया आपने. एक और बात जो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहूँगा कि ये किताब मैंने कुछ 15 के करीब नुस्खे यहाँ पे ले आया था. मैंने आगा साहब को दे दिए हैं, कुछ दोस्तों को उन्होंने दे दिए होंगे. तो चूँकि मेरे पब्लिशर ने मुझे इतने दिए थे
और वो भी आ गए हैं। मैं अपना बिजनेस कार्ड दे के जाऊँगा, यहाँ पे अवेलेबल होगा आगा साहब के पास भी। तो एनीबॉडी हु सेंड्स मी एड्रेस, तो मैं एक कॉपी उनके लिए वहाँ से इस्लामाबाद जाके भिजवा दूंगा जिसको किताब नहीं मिली। मैं चाइना स्कॉलर कैसे बन गया, ये बड़ा ज़रूरी है। और जब मैं पीएचडी करने गया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा जी कि आप किस पे पीएचडी करना चाहते हैं जी? मैंने कहा मेरा दिल है कि मैं मुस्लिम दुनिया को वेस्टर्न दुनिया के करीब लाने के लिए कोई काम करूँ। आई वॉन्ट टू एक्चुअली वर्क ऑन समथिंग दैट शुड, ये मुसलमान जो है ना हर वक्त वेस्ट को कोसते रहते हैं, तो ऐसा काम करूँ कि ये जो वाइडनिंग गैप है ये वेज हो जाए। लेकिन वो यूनिवर्सिटी ने एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप चाइना पे काम कर सकते हैं। तो मेरा इतना सख्त मूड नहीं था चाइना पे काम करने का, ऐसे हाफ हार्टेडली मैंने काम किया। बट माई प्रोफेसर्स वर पीपल ऑफ वी एंड दे न्यू दैट अभी चाइना टाइम इज़ कमिंग, तो वो चाइना पे काम करने वालों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अपनी हम्बल सी कैपेसिटी में पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पे काम करता हूँ। और क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हमारा जो मुस्तकबिल है एटलीस्ट अगले 50, 60, 70 साल जो है वो चाइना के साथ है। तो मे भी आप इस पे सवाल करेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको एड्रेस भी करूँगा कि हम वाई वी एक्चुअली, जो आगा साहब ने सवाल किया ना डिपेंडेंसी वाला, वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि डिपेंडेंसी मोड की बात नहीं करूँगा बाद में इनके सवाल के जवाब में। किताब आप देखेंगे, बेसिकली दिस इज़ अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, कि हमने कैसे चाइना के साथ अपने तल्लुकात का आगाज़ किया। बेसिकली जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके कुछ अर्सा बाद चाइना भी आज़ाद तो नहीं हुआ, वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी, लेकिन वो भी डिक्लेयर हुए रिपब्लिक बने। तो उन्होंने भी साथ साथ यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने कौमी ज़िंदगी का जो अभी मॉडर्न चाइना है उसका आगाज़ भी हमारे साथ किया। तो मैंने जब किताब लिखी तो इस रिलेशनशिप को मैंने कहा कि ये जो रिलेशनशिप था ये इसके फेजेस थे। पहला फेज़ था रिलेक्टेंस का फेज़ था, जिसमें हम, जो कि आज तक हम किसी न किसी रिलेक्टेंस फेज़ में होते हैं, मोड में होते हैं। हम सोचे थे कि ये इनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, ये कम्युनिस्ट लोग हैं, हम मुसलमान हैं, तो ये ठीक दोस्ती ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसा रिलेक्टेंस मोड में रहे, फिर कोऑपरेशन मोड में आए, फिर वो किसी के दुश्मन बने, हम उनके दोस्त बने। हम किसी के दुश्मन थे तो उन्होंने हमें साथ मिलाया कि चलें दुश्मन बन गए हैं तो मिल के दुश्मनी करते हैं। तो इस तरह के मोड में ये रिलेशनशिप जो है ना वो चलता रहा। लेकिन जो बड़े इंपॉर्टेंट फेज़ हैं, मैं जब इस किताब में आप देखेंगे वो 1947 से 1990 तक का फेज़ था, जिसमें पहले रिलेक्टेंस थी, फिर हमने चाइना के साथ कोऑपरेशन शुरू किया। और जो कोऑपरेशन शुरू का था उसकी जो ज़्यादा उसका फोकस था दैट वाज ऑन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक फोकस था। लाइक उन्होंने हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, हमें उन्होंने म्यूनिशन फैक्ट्रीज बनाने में मदद की, उन्होंने हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को की। इसके पीछे क्या दलाइल थे, क्या इसके पीछे लॉजिक थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर जो दो बहुत अहम चीज़ें हैं वो जब आप मुल्कों की तल्लुकात की बात करते हैं तो इट्स फर्स्ट बायलैटरल, देन इज़ रीजनल एंड देन इज़ ग्लोबल। तो बायलैटरल सतह पे तो हम ठीक हो गए। फिर रीजनल, जिस रीजन में हम रहते हैं हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, इंडिया के साथ मसला है, अफगानिस्तान के साथ मसला है, ईरान के साथ मसला बनाने की कोशिश करते रहते हैं हम। तो इस तरह का एक रीजनल हालात भी पैदा हुए। उसमें पाकिस्तान चाइना ने क्या किया, इस किताब में उसका मैंने जिक्र करने की कोशिश की। फिर चूँकि हम जियोग्राफिकली ऐसे पोजीशन हैं जिसको सम पीपल डोंट एग्री, बट डेफिनेटली दिस जियोग्राफी हैज़ कॉस्ट अस अ लॉट, बिकॉज इस जियोग्राफी की वजह से इस खित्ते में बहुत सारी ऐसी वाक़यात हुए जिसमें इंटरनेशनल पावर्स इंटरेस्टेड थी या उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से हमें भी सफ़र करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अमेरिका रशिया की जंग अफ़गानिस्तान में जारी थी तो पाकिस्तान ने सफ़र किया। अमेरिका की जंग जारी थी द वॉर ऑन टेरर, उसमें फिर हम सामने आ गए। तो बायलैटरल के अलावा रीजनल एंड ग्लोबल जो भी डेवलपमेंट्स इस खित्ते में हुई उसमें पाकिस्तान somehow came to the forefront and probably suffered because of this unique geographical position. अभी
कुछ जो कंक्लूजन्स मैंने बयान करने हैं उससे जो डोमेस्टिक बायलैटरल तल्लुकात चल रहे हैं, जो CPEC चल रहा है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप सवाल करें ताकि मैं ज़्यादा जवाब दूँ, ताकि मैं एग्जैक्टली जो आपके जहन में चीज़ें हैं। लेकिन मैं कुछ ग्लोबल कंक्लूजन बयान करना चाहता हूँ। और आज सुबह जब मैं ये पर्चियाँ बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये मेरी किताब में शायद उसको उस एंगल से जिक्र नहीं किया, जो कि बाद में मुझे पता चला और शायद इसके लिए मुझे अगली किताब लिखनी पड़ेगी। कुछ ग्लोबल कंक्लूजन्स ड्रा होते हैं इस सारी सिचुएशन से। एंड फर्स्ट ग्लोबल कंक्लूजन इज़ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इज़ स्ट्रक्चरल इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। आप कोई एक दुश्मनी, एक इशू, एक मसला सेटल करेंगे, दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा। लाइक ऑफ लेट आई वाज राइटिंग एन आर्टिकल ऑन वैक्सीन नेशनलिज्म। अब कोई सब सोच सकता था कि नेशनलिज्म की एक फॉर्म वैक्सीन भी हो जाएगी किसी वक्त। पेंडेमिक आएगा, वैक्सीन बनेगी, अमेरिका सारी वैक्सीन अपने काबू में कर लेगा, गरीब मुल्कों को देगा नहीं, गरीब मुल्क बना नहीं सकेंगे, वो लोग मरेंगे। यू जस्ट इमेजिन कि कितनी ऐसी चेंज आई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो कॉन्फ्लिक्ट की हम पहले भी मेजर पावर्स भी, मिडिल पावर्स भी और छोटी ताकतें भी वो बहाने ढूंढती रहीं, और ये दे विल कंटिन्यू टू डू सो आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो, कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ परपेचुअल इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है, कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा ये है कि मज़े की बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ कोऑपरेशन इज़ आल्सो परपेचुअल। कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी भी लोग हमेशा चाहेंगे, हर मुल्क कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल चाइना इंडिया की मिसाल है, तो चाइना इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट देयर आर पीपल हु सीक कोऑपरेशन आल्सो विद इंडिया इन चाइना, एंड देयर आर पीपल इन इंडिया आल्सो हु राइट ओपनली इन न्यूज़पेपर्स एंड दे सीक कोऑपरेशन विद चाइना, बिकॉज दे थिंक कि कोऑपरेशन जिससे बेनिफिट होगा, कोऑपरेशन जो है वो आपको बेनिफिट करेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी जारी है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन का एक इम्तजाज है, आई थिंक दिस विल स्टे इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसका हल लोग निकालेंगे लेकिन किसी दूसरी शक्ल में निकल आएगा। फॉर एग्जांपल चाइना एंड US दे हैव ट्रेड वॉर। अब ट्रेड वार की तरफ वो जो ही उसको सेटल करने की कोशिश की उन्होंने ट्रेड वार को, तो पता चला जी कि नहीं, IT टेक्नोलॉजी इज अनदर इशू जिस पे अमेरिका को प्रॉब्लम हो गया कि चाइना इज बिकमिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अमेरिका। वो नहीं चाहते कि अमेरिका चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए। नाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर बिटवीन US एंड अमेरिका इज गोइंग टू बी ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन का जो मेरी असेसमेंट ये है कि ये दिस विल कंटिन्यू। तीसरा जो कंक्लूजन मेरा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, वो है कि पावर विल ड्राइव द इंटरनेशनल रिलेशंस। अब दो तरह की पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले इज़ मिलिट्री पावर। मिलिट्री से पहले इकोनॉमिक पावर। इधर आपके पास इकोनॉमी होगी तो आप मिलिट्री हार्डवेयर खरीद के खर्च करेंगे उस पर। दिस विल ऑल्सो कंटिन्यू, दिस इज़ परपेचुअल। आप भूखे मरेंगे लेकिन मिलिट्री पालेंगे अपनी। ये स्ट्रक्चर बन चुका है पूरी दुनिया का। अब पीपल ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल, विशियस साइकिल जो बन चुका है, कि इससे निकलेंगे ऐसे हम, कि हमने लड़ना भी है, हमने कोऑपरेशन भी सीख करना है, हमने ताकत भी हासिल करनी है, इकॉनमी भी ठीक करनी है, मिलिट्री भी पालनी है, और लोगों की फलाह भी करनी है। वेरी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिचुएशन दैट। और फिर जो कंपटीशन की फिजा है, ये भी एक ऐसा आंसर है, सच एन एलिमेंट दैट इट विल आल्सो कंटिन्यू टू स्टे। एंड हाउ इसमें कोई ताकत जो पावर है वो मिडिल पावर है या मेजर पावर है, वो ये देखेंगे कि हमें किस मुल्क, कौन सा मुल्क हमसे आगे जाएगा और हमारे इंटरेस्ट को वो शेक करेगा। तो यू आर इनटू अ स्टेट ऑफ कंपटीशन आल्सो फॉरएवर। अब बहुत सारे स्कॉलर्स जिनसे हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते हैं। लाइक पाकिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि वी आर आल्सो इन परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया फॉर एग्जांपल। अब हम इससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसमें रहना भी चाह रहे हैं। अब ये तो हमारा एंगल है सोचने का, लेकिन जो लोग हमें असला बेच रहे हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है, वो हमें इसमें से निकलने नहीं देना चाहते। वो शायद कहेंगे कि नहीं, आप लड़ाई ना करें।
तो कॉन्फ्लिक्ट का भी एक मसला ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ प्रोडक्टिव एंड काउंटर प्रोडक्टिव बोथ। कुछ के लिए प्रोडक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट, सारी जो वॉर का जो पैराफिनिलिया है उसकी कॉस्ट है, और उसकी कॉस्ट पे मुल्क ज़र मुबादला कमा रहे हैं, तो वो दे कंटिन्यू टू कीप दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन कंट्रीज़। और उसको बिकॉज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी इन वेरियस सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इज कि चाइना चाहता है कि कश्मीर इशू हल हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि चाइना का क्या इंटरेस्ट है, कश्मीर के हल होने में इंटरेस्ट है या कश्मीर का स्टेटस को बरकरार रखने में चाइना का इंटरेस्ट है। तो मुझे ये ग्लोबल जो सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है इस एतबार से कि थिंग्स आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल। कमिंग टू रीजनल, ये कुछ ऐसे कंक्लूजन हैं जो मैंने अपनी किताब के अंदर मैंने मेंशन किए हुए हैं, उनमें से ये कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। अभी जब हम रीजन पे आते हैं तो देर आर इंटरेस्ट ऑफ रीजनल कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इस रीजन में हम हैं, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, कुछ तो हमारे इंटरेस्ट हैं रीजन के मुल्कों से, कुछ मेजर पावर्स के इंटरेस्ट हैं, कुछ यूरोप चाहता है कि ये इस तरह होना चाहिए इस जगह, कुछ यूएस चाहता है कि ये रीजन ऐसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, या मुल्कों को ऐसे ऐसे अपनी अपनी पॉलिसीज रखनी चाहिए। तो अगेन एट रीजनल लेवल ऑल्सो in international relations there is a lot of conflict, there is a lot of competition, and there is a perpetual war of guarding own interest which is likely to stay. अब जब मैं सारी ये फ़लसफ़ा बयान करता हूँ किताब के बारे में, तो लोग उससे पूछते हैं कि ये फिर इसका हल क्या है, ये तो बड़ी गंभीर सिचुएशन है। तो उसका मेरा ख्याल ये है कि in the situation, conflictual situation, जैसी we have in our region, you need to assert to safeguard your interest. अब हमारा हमें पता है झगड़े रहेंगे, अमेरिका का इंटरेस्ट रहेगा, चीन भी इधर करता रहेगा, इंडिया भी हमें तंग करता रहेगा, हम भी इंडिया को तंग करते रहेंगे वगैरह वगैरह, जो एक पूरा माहौल बना हुआ है रीजनल। उसमें हम करें क्या? तो उसमें यह है कि हम इस सारी अंधेरे को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कोई थोड़ी सी रोशनी पैदा करें। रोशनी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन डिप्लोमेसी। आपको अपनी डिप्लोमेसी करनी है और अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना है उसमें से। एंड सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपकी इकॉनमी, जैसे आज हमारी इकॉनमी है, आपकी इकॉनमी नहीं है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। Foreign policy is directly related to I met a professor from China. He was actually writing, he's doing some research on behavior pattern of China. तो he revealed कि चाइना ने जब पैसे नहीं थे तो कैसा बिहेव करता था, जब पैसे थोड़े ज़्यादा हुए तो कैसा बिहेव किया, जब ज़्यादा now when they have growth rate at 9, 10 and 12, तो उस वक्त कैसे बिहेव करते हैं। अब उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी। अब अमेरिका में जाके अमेरिकियों के सामने बैठ के वो कहते हैं यू आर लाइंग और यू डूइंग दिस रॉन्ग। तो क्या किया उन्होंने, इकॉनमी जो जो मजबूत होती गई उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज होता गया। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इकॉनमी अगर उसकी बुनियाद मजबूत हो गई, उसकी सिमत ठीक हो गई, एंड यू आर एबल टू चेंज लाइव्स ऑफ योर पीपल, तो आपकी आवाज़ में वज़न आ जाएगा, आप एग्रेसिव हो जाएंगे, आप थोड़ा सा अपना आप को असर्ट करना शुरू कर देंगे इंटरनेशनल एरिना में। मैं जो बायलैटरल एंड डोमेस्टिक लेवल पे जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि वी नीड टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव इन आवर डिप्लोमेसी। ऑफ कोर्स जो लोग डिप्लोमेट्स हैं वो डिप्लोमेसी में जो काम करने वाले लोग अभी समझते हैं कि पहले आपकी इकॉनमी मजबूत होगी और फिर वो ड्राइव करेगी आपकी डिप्लोमेसी को। बट आई थिंक while you put your economy on right track, तो आपको डिप्लोमेसी भी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। Coming down to the very hot topic that is CPEC and चाइना पाकिस्तान, हमारा जो कोऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखें, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर ये CPEC हो जाता है तो पाकिस्तान की, मैं इसको गेम चेंजर आप तरह नहीं करता, बिल्कुल मैं इस टर्म को बाय नहीं करता। There's nothing that can change the game for Pakistan unless we really do it first. हम कर लेंगे तो ये हो जाएगी। लेकिन ये है कि अब CPEC होने में मिसाइल क्या है। अब CPEC का
हम कैसे ये दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट, आप मुझ पर ट्रस्ट करें कि ये बहुत तारीखी मौका हमारे पास इस अपने मुल्क की कमर्शियली करने। हम अगर सी पैक को हम अगर अच्छे तरीके से कर लें, जिससे चाइना कर रहा है ऐसा ही हम भी कर लें, तो सी पैक एन हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड वी मस्ट सीज द मूवमेंट टू वर्क फॉर सी पैक, और इसकी जो भी इसमें हम काम कर सकते हैं। अब उसमें इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो बहुत सारे हैं, वो कल मकबूल अफरीदी भी बात करते रहते हैं। मेरी नज़र में जो सी पैक में चैलेंजेस, मेरी किताब में मैंने सी पैक पे एक चैप्टर में जिक्र किया उसका, और मैंने मसाइल की निशानदेही भी कर दी। वो ये सबसे पहला मसला हमारा ये है कि हम समझते हैं कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, ये चाइना का प्रोजेक्ट है। मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ, मैं समझता हूँ कि होना ही पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर चाहिए। ये चाइना का लगा के ना हम सो गए हैं कि ये चाइना ही करेगा, जिसने जब जो भी करना है चाइना नहीं करना है। एंड वर्चुअली इफ़ यू कम एंड स्टे इन इस्लामाबाद फॉर 2 वीक्स एंड टॉक टू पीपल अबाउट सी पैक, यू विल बी डिसअपॉइंटेड टू नो कि ये वी हैव नो ओनरशिप ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हम समझते हैं कि जब तक ओनरशिप नहीं होगी इसकी, ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। एंड वी मस्ट ओन दिस मेगा प्रोजेक्ट एज आवर ओन प्रोजेक्ट। इट डज हैव प्रोमिसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रोमिसेस ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। मजीद साहब से मेरी बात हो रही थी कि दूसरा बड़ा सी पैक का मसला ये है कि इट इज़ नॉट इंक्लूसिव। देयर आर पोलिटिकल डायमेंशन ऑफ सी पैक, देयर आर commercial dimensions of CPEC, there is a defense security dimension of CPEC. They are all kind of dimensions of this CPEC. अगर ये कामयाब होगा तो हमने, जब आप CPEC पे देखते हैं तो आपको लगता है कि there are very few stakeholders. बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो चाइनीज कह रहे हैं जी कि ये फौज करेगी, हमारा फौज के साथ ताल्लुक है जी, फौज दे विल इंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट। नो, इट्स नॉट फौज, इट्स होल ऑफ पाकिस्तान। आप बिजनेसमैन को कैसे निकालेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे निकालेंगे, डेवलपमेंट इंडस्ट्री को कैसे निकालेंगे, आप जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं, कनेक्टिविटी में जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव प्रोजेक्ट, और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन से होगा ये किसी एक इदारे का या किसी एक ख़ास तबके का प्रोजेक्ट नहीं है। ये सब पूरे पाकिस्तान में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका मुश्तरका प्रोजेक्ट है, और ऐसा होना चाहिए। अगली जो बड़ी इम्पेडिमेंट जो मुझे लगती है, मैं इस दौरान जब से मैंने ये असाइनमेंट पे हूँ तो मैं चाइना जाने का मुझे 4 मरतबा इत्तेफाक हुआ, एंड नाइस ऑफ देम दे शोड मी हाउ एक्चुअली चाइना वर्क्स। तो मैंने देखा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, द ह्यूज डिफरेंस इन हाउ दे अप्रोच टू देयर डेवलपमेंट एंड हाउ वी अप्रोच टू आवर डेवलपमेंट। पेस का इशू है बहुत बड़ा। चाइना, आप यूँ समझें कि वो 2000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, और हम जो है ना वो 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। ये इतना पेस का फ़र्क है। अभी व्हेन यू कांट पेस अप विद पार्टनर, तो आप कैसे करेंगे। एंड मैंने चाइनीज़ के साथ, जिनके साथ हमारी थोड़ी फ्रैंकनेस हो गई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। अपने मुल्क में आप ब्रिज बनाते हैं 20 दिनों में, 3 किलोमीटर लंबा। अपने मुल्क में आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं 20 मंजिला 30 दिनों में, और हमारे मुल्क में ग्वादर भी तक 10 साल को हो गए हैं तो डेवलप नहीं हुआ। तो दिस इज़ नॉट फेयर। इधर भी ऐसे आप करें। लेकिन चाइनीज़ की जो अप्रोच जो मुझे समझ आती है वो ये है कि आप भी तो कुछ करें, कि सारा ही हम करें। तो इधर यहाँ पे उनको बहुत इस जो मॉडल में कुछ मसाइल हैं वो भी उनको देखने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक the kind of model China has, it's a very ruthless model of development. We will have to push and go ruthless on it if we want to develop. एक बहुत अहम चीज़ जो हम, चूँकि तल्लुकात हमने चाइना के तल्लुकात के हवाले से लिखा मैंने, और उसमें बात भी होती है what we can learn from China, ये भी बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले जो मुझे लगता है चाइना से हमें ये सीखना है कि हाउ टू हैव दैट काइंड ऑफ विजडम। चाइनीज़ विजडम क्या है, आप देखें कि एंड नॉस्टैल्जिया है उनको इस विजडम के साथ, जो लाइक वो कहते हैं कि
हम हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, तहजीब है, हम बहुत पुरानी तहजीब है। तो उस तहजीब ने उनको बहुत सारी और चीज़ें जो सिखाई, उसके साथ विजडम भी सिखाई। चाइनीज़ विजडम की बात करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न विजडम फ्रॉम चाइनीज़, और हमें उनसे कुछ एक आध दफ़ा मिसाइल की जो कंसाइनमेंट है उसको ड्रॉप करके ना विजडम की कंसाइनमेंट लेने की ज़रूरत है। Another thing that we can learn from China is patience. देखें, I worked with a scholar from China who was working on Ladakh पे जो क्राइसिस था इंडिया और चाइना का, उस पर काम कर रहा था वो, तो मैं भी उसमें किसी हवाले से शामिल था। तो मैं उससे कह रहा था, मैंने कहा चाइना हैज़ नो अपॉर्चुनिटी, चाइना विल पुश इंडिया टू लिमिट्स। लेकिन उसका ख्याल था कि नहीं, चाइना विल जस्ट स्टॉप आफ्टर फ्यू डेज एंड दे विल नॉट पुश फर्दर। तो मैं उससे पूछता था व्हाई दे विल नॉट पुश फर्दर। वो कहता दे विल नॉट पुश फर्दर बिकॉज चाइनीज़ आर नॉट इम्पेशेंट। वो एक ख़ास जगह पे जाके रुक जाएंगे जहाँ पे उनका पर्पस सर्व हो जाएगा, पॉलिटिकल पर्पस है या मिलिट्री पर्पस है, वो सर्व हो जाएगा, वो तो छोड़ देंगे। दे विल नॉट पुश इट। हालांकि चांसेस थे, जो चाइना क्लेम कर रहा था अपनी टेरिटरी इन लद्दाख सेक्टर, वो उस वक्त ऐसा पुश बनी हुई थी को ले सकते थे, बट दे जस्ट स्टॉप शॉर्ट, मच शॉर्ट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। तो मैंने कहा व्हाई डिड दे डू इट। उन्होंने कहा जी वो इसलिए किया कि उनका इससे परे जाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, एंड दे शोड पेशेंस, whereas we have not been able, probably we don't show patience जब हम we come to such and last thing that China we should learn from China is consistency. मैं हंसता हूँ कि बाज़ का हमारे साथ दोस्ती में ही वो इतने कंसिस्टेंट हैं। तो कभी कभी मैं उनको ऐसे अजीब अजीब मिसालें देता हूँ अपने रिसर्चर्स को समझाने के लिए। मैंने कहा आपका अगर चौथा भाई किसी नशे की लत में हो या किसी बुराई में हो, तो बड़े तीन भाई इसका नाटका बंद कर देते हैं। वो कहते हैं यार ये तो इस तरह का है, इसको छोड़ो या इसको पैसे नहीं देने देगा। मैंने कहा लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर रहा। चाइना हमारी मुसलसल हेल्प कर रहा है, इसके बावजूद कि हम पैसे ज़ाया करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को ख़तरे में डाल देते हैं वगैरह वगैरह। उसके बावजूद चाइना इज़ वेरी कंसिस्टेंट। वन ऑफ द चाइनीज़ डिप्लोमेट सेड, मैंने कहा ये मैं आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा चाइना हमारे साथ रिलेशन में कितना आगे जाएगा, क्योंकि समटाइम्स यू चाइनीज़ से दैट यू नो पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग एनफ। अमेरिका के साथ आते मिल जाते हैं, अपनी डिप्लोमेटिक जो उनकी एक ख़ास पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें कंसिस्टेंट नहीं है। कहते हैं जस्ट वेट फॉर 200 ईयर्स। तो दैट शोज देयर कंसिस्टेंसी। उनकी सोच ये है कि हम कंसिस्टेंटली एक चीज़ को परस्यू करेंगे। वाई, वो क्यों करेंगे? इसलिए कि देयर इज़ डेफिनेटली एन इंटरेस्ट लिंक टू पाकिस्तान, जो चाइना समझता है और वो जानता है कि ये इस तरह का है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ। इन माई ओपिनियन दुनिया अभी आगे आने वाले वक्त में BRI एंड नॉन BRI नेशंस में तकसीम होने वाली है। दुनिया डिवीजन देखने वाली है, जिसमें एक अमेरिकन कैंप बनेगा, एक चाइनीज़ कैंप बनेगा, और उस कैंप में बहुत सारे लोग इस कैंप में जाएंगे, बहुत सारे लोग उस कैंप में जाएंगे। चाइना ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया के 70 से ज़ायद मुल्कों में ले गया है। नॉट ओनली स्ट्रक्चर बना ले गया है, बल्कि अपनी स्टेक्स भी ले गया उधर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये मेरे ख्याल में विद दिस मेयर फैक्ट कि चाइना हैज़ नाउ रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इनग्रेस कर गया है क्वाइटली, which cannot be counted very easily। तो दुनिया बहरहाल तकसीम होने जा रही है ग्लोबल लेवल पे, और BRI नॉन BRI के कॉन्सेप्ट आने वाला है, जिसमें बहुत सारे लोग चाइना के साथ देंगे। और चाइना का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उनकी डिप्लोमेसी में गुस्सा नहीं है, दे आर नॉट यू नो एजिटेशन नहीं है, वो उनको बुरा नहीं लगता, वो डांटते नहीं है, वो आर्म ट्विस्ट नहीं करते, बट दे डू द सेम थिंग वेरी पोलाइटली एंड वेरी नाइसली के कौमों को समझ नहीं आ रहा शायद इस वक्त। लेकिन यह है कि फिर भी चाइना की ये उनकी लीडरशिप की ये तरजीह है कि वो दुनिया में एक बेनेवलेंट किस्म का मॉडल दें, दुनिया को एक ऐसा मॉडल दें जिसमें विन विन सिचुएशन हो, शेयर्ड डेस्टिनी हो, कॉमन फ्यूचर हो। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव अच्छे अच्छे अल्फाज चाइनीज़ बोलते हैं कि जी लुक आई हैव मनी बट आई वांट यू टू आल्सो हैव मनी, और इस पैसे को जो मेरे पास एक्सेस वेल्थ है
हम दुनिया की बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट चाइनीज गेम। आई जस्ट विश कि वो इस कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाएँ, और जो बहुत सारे प्रोपेगेंडे हम सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पे उन्होंने हम बतौता ये कर दिया, फ़लाँ जगह ये कर दिया, वो उस एक जो परसेप्शन डेवलप हो रही है उसको करें। बट इन एनी केस नेक्स्ट 50 ईयर्स आर ऑफ चाइना, और पाकिस्तान के लिए दिस इज़ वेरी क्रिटिकल मूवमेंट कि हम इस मूवमेंट को सीज़ करें, एंड वी मस्ट टेक बेनिफिट ऑफ चाइनीज़ एक्सपर्टीज, चाइनीज़ विजडम, चाइनीज़ नॉलेज, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एंड चाइनीज़ लीडरशिप। अगर शी जिनपिंग ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है और मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें इससे फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा उठाने का तरीका ये है कि इस CPEC को या जो भी हम इकनॉमिक अपने डेवलपमेंट के काम करना चाह रहे हैं उसमें हम इसको ओनरशिप लें, हम इन चीज़ों को अपना प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझें। और ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट एंड देन आई विल राइट क्वेश्चंस, कि स्टेबिलिटी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ के ऊपर मीम्स देखता हूँ। श्रीनगर हाईवे बनाई तो मीम्स आई हमारे सोशल मीडिया पे, हमने नक्शा बना दिया तो उस पर जोक्स बनाने शुरू कर दिए। मतलब नेशनल लेवल के हम एक्शंस करते हैं, हम इनिशिएट करते हैं मेयर्स, उसके ऊपर लोग हंसते हैं, हम खुद हंसते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं उन चीज़ों का। आई थिंक वी नीड टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन एट इंडिविजुअल लेवल। हमें सबको ये तासर गलत है कि ये फ़ौज का काम है, फ़ौज करे। नो, इट्स एवरीबडीज़ जॉब, हर शख्स को करेगा। जब तक ये इंक्लूसिव नहीं होगा, इस मुल्क में सारी चीज़ें जब तक इंक्लूसिव नहीं होंगी, इस मुल्क में सारे काम जब हम इकट्ठे होकर नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। मैं जो आगा साहब ने सवाल किया, इनके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर हम आपसे सवाल लेते हैं। मैंने 3-4 दिन पहले एक जगह पे कहा कि जब तक हम, ये डिपेंडेंसी मोड है। डिपेंडेंसी मोड क्या है? जो डिपेंडेंसी ने बात की कि हम पहले अमेरिका के ऊपर इमदाद पे चल रहे थे, अब चाइना की तरफ देखना शुरू हो गए। डिपेंडेंसी मोड जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये वी मस्ट बी श्योर अबाउट इट। ये आप इसको समझ लें कि जब तक, अब आपको अफसोस नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं बड़े बड़े, कि हमें कोविड के शुरू में मास्क इंपोर्ट करने पड़े। जस्ट इमेजिन, मास्क इंपोर्ट करने पड़े हमें। तो इससे बड़ी बात हो सकती है हमारे लिए शर्म की कि हम मास्क भी इस मुल्क में नहीं बना सकते। तो ये डिपेंडेंसी मोड है, खुद नहीं कर रहा, बाहर से मंगवा लो। तो एक तो ये, दूसरा ये आइडियोलॉजी पे मैं जो आगा साहब ने बात की, मैं समझता हूँ कल्चर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं चाइना पाकिस्तान के, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है। मुझे ये लगता है कि कल्चर का इशू नहीं है, आइडियोलॉजी का थोड़ा सा हमें है, लेकिन वो भी व्हेन यू नो पीपल हैव प्रॉस्पेरिटी एंड कनेक्टिविटी एंड मनी, तो आइडियोलॉजी को इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। लेकिन लोग इसको नेगेटिव ना समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चाइनीज़ ये तो नहीं आगे कर रहे आप मस्जिदें बंद कर दें या कोई आपकी फेथ, दे डोंट। अपने मुल्क में सिंगयांग पे मुझे सवाल करते हैं तो वो उनका अपने मुल्क का मसला है, उसके अपने डायमेंशंस हैं, उसकी अपनी जेतें हैं, वो एक अलग उससे डिस्कस होता है। लेकिन जहाँ तक इनका कल्चर का, आई थिंक डाइवर्सिटी इज़ गुड। मैं आप सामने बैठा हूँ, आज तो मैंने उर्दू बोलने की कर ली, मेरे उर्दू मेरी स्ट्रेंथ है, वरना हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं। अब मैंने टाई पहनी हुई है, तो ये भी तो कोई कल्चर किसी से है ना, ये तो मेरा लिबास नहीं है मेरे मुल्क का, हम, और मैं एक्सेप्टेबल भी हूँ आपके लिए। तो मेरे ख्याल में कल्चर का जब मिक्स होगा, उससे जो डाइवर्सिटी आएगी। हाँ, देखिए, इस मुल्क को बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि हमारी अपनी एस्पिरेशंस हों, हमारी अपनी वैल्यूज़ हों, हमारी अपने एक तशख़्ख़ुस हो। ये इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करता। वो कैसे होगा? जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आप इन चीज़ें फॉलो करेंगे। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो वो एक कल्चर के जेत है ना, लिबास, तो इट लुक्स नाइस वेर एवर ही गोज, ही पुट्स ऑन शलवार, एंड हर बंदा मुतासर भी होता है उससे जिन्होंने चप्पल पहनी है और वो पहना हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस कल्चर को, और ये इशूज एज लॉन्ग एज दे डोंट इम्पैक्ट योर सॉवरेनिटी इशू, दे शुड क्रिएट काइंड ऑफ कंफर्टेबल सिंथेसिस जो आपके मुल्क में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आगा साहब, एक बार फिर आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और सारे मेहमानों पे बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी।